Sir, your voice is not audible. I was mute, sorry. Okay, so today's learning is when we have this kind of moving averages crossover, bullish moving average crossover, and we have a buy signal, it means it's a good buy, and our stop loss is just below the moving averages. And normally I've seen the target 4 is normally hit, and we also go to target 5 and 6 and so on. But this is target 4 is, maximum time it hit the target 4. And our stop loss will be if the upside targets turn downside, then we exit, or our stop loss will be here. So just for an example, can anyone give me any script? I just open any script and we'll see. Tata Communication. Communication, okay. So that is 5-minute time frame, okay. So I just open Tata Communication and I go to any time, like actually this is a fresh chart, na? So better to give me some old stock. चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से 5 मिनट में चेक कर लेते हैं, और एल्स वी कैन लुक फॉर 1 आवर. चलो 1 आवर में देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है. Sir, BF investment. हम्म BF investment. नहीं कोई नहीं, इसको देख लेते हैं. Okay. Okay, just say for example in 4 hour time frame. So when we see upside targets, we only need to check the moving averages. If moving averages are aligned, for example here moving averages are aligned, so we can go for a long target. I open any random stock. Let's say this. Okay. So when we have this upside target here in 4 hour time frame, what we see, the moving averages are not aligned. So we can wait. If this is a situation when moving averages are aligned and we see a upside target, any upside target, so we can go for a buy. Like here, and we will see upside targets. Okay, so just a minute. So here crossover is done. We have a bullish crossover and price is just near the entry price only. Price is near the entry price and this is our upside target. And we can see that moving averages are aligned, black, blue, green, red. So this is a good buy. We can buy here for target 4, minimum target 4. See this. Okay, so I mean to say, when we have upside target, we only need to check the moving averages. If moving averages are aligned, we can go for a target 4 minimum. First target is target 4. And we can trail it, of course, because what will happen now, it will take support on moving averages, again will go up, take support on moving average will go up. For example, here it has given a downside target, so we should exit our trade. So we bought here and we exit here. What was the other stock you said? BF investment. BF investment. Which time frame you want to see? 4 hour daily? Yes. 4 hour. 4 hour, okay. So currently, for example, in 4 hour, we have a buy signal and these moving averages are aligned, right? So we can go for a buy.
we don't need to see cloud, we don't need to see buy signal. Yes, additionally we can take a confirmation, but only these moving average, if all moving averages are aligned, this is enough. We can go for a buy. And my target will be target 4. Target 4, or if in between target changes and it shows fresh upside target, then the fresh upside targets ka target 4 will be my target. Okay. Normally in such situation, stock is bullish and it keeps going on and on. मतलब वो फॉल नहीं आता है नॉर्मली. जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी गॉट अ बाय सिग्नल, ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज अलाइन नहीं थे. So when moving average got aligned, it already hit target 6. तो यहाँ पर ट्रेड लेना सही नहीं है because it is already reaching at the higher zone. नीचे आएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ट्रेड ले सकते थे, but it changed the direction, so it's better to exit. We cannot take the trade here. So here we can take trade. Here we can take trade. Why? Because moving averages are aligned. ये हमारा ट्रेड हो सकता है. Okay, sir. Thank you. अगर ट्रेड कंटिन्यू रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वी कैन एग्जिट. तो यहीं पर हमने ट्रेड लिया, एग्जिट किया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी एग्जिट. हियर वी कैन टेक ट्रेड बिकॉज मूविंग एवरेज अलाइंड, बट वी एग्जिट. कुल मिलाकर लॉस नहीं होगा आपको कहीं पर भी. सी बार बार क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फ्रेश टारगेट्स बन रहे हैं. सो अल्टीमेटली इसको ये फॉल तो नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना पड़ेगा एंड देन एक ब्रेकआउट इसमें आ सकता है. डेली अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम देख लें तो डेली में चेक कर लेते हैं. डेली इज ऑफ कोर्स डेली इज बाय, सो डेली का टारगेट 4 इज माय टारगेट. वी कैन गो फॉर इट बिकॉज मूविंग एवरेज अलाइन और ये अपसाइड टारगेट्स हैं. Any stock I can open. So this is, let's say, daily time frame. Daily time frame में when we have a buy signal, we need to check this. If this is okay, we can go for a buy. अब ये मेरा daily time frame confirm हो गया, so 4 hour के अंदर I can take trade. If 4 hour is also at the same direction, moving averages are aligned, we have upside target, we can go for it like this. तो सोना कोम के अंदर we can go for a buy. अपसाइड टारगेट्स हिट हो जाएंगे इसमें. Any script we can do like that. वरुण, एक आप ये चेक करेंगे BASML. BSNL. नहीं नहीं, BASML. ML. Yes. SML. ये तो शायद मैंने बताया था. हाँ, मैंने एक्चुअली तभी लिया था. तो अब इसमें क्या है, जैसे अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो उसमें तो ये डाउन साइड टारगेट्स दे रहा है. एक बट सेकंड, अगर बाकी सारे बिग टाइम फ्रेम से चेक करते हैं. सो बिग टाइम फ्रेम पे वी हैव, मंथली पे वी हैव अपसाइड टारगेट, लेकिन मूविंग एवरेजेस एंड एवरीथिंग इज नॉट अलाइंड. ठीक है. वीकली पर चेक करें तो वीकली पे वी हैव अ टारगेट, अपसाइड टारगेट, एंड इट्स ऑल ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, ये ओके हो रहा है वीकली पर. एंड डेली पर भी इट्स ओके बिकॉज मूविंग एवरेजेस लाइन है हमारे. तो डाउन साइड इवन इट इज शोइंग डाउन साइड टारगेट, बट वो चेंज होकर अभी अपसाइड में टर्न हो जाएगा. सून इट विल टर्न अपसाइड. तो वी विल हैव अ फ्रेश अपसाइड टारगेट एंड देन वी कैन गो फॉर इट. लाइक हियर 4 आवर हो रहा है धीरे धीरे, तो देन डेली टाइम फ्रेम भी हो जाएगा. विच टाइम फ्रेम पर आई हैव गिवन दिस स्टॉक ऑन विच टाइम फ्रेम? I think, sir, daily you have given and it hit target 4. If I'm correct, I remember like that. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि टारगेट 4 हिट हुआ था क्या. ओके, टारगेट 1 हिट हुआ था, उसके बाद में ये वापस इसमें फॉल आया है.
बिकॉज वो मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, वो सब फॉल आया है। बट नो वरीज, इसमें क्या होगा अभी, ये जो फॉल आया है ना, यहाँ पर लेवल्स चेंज हुए हैं, सो इट विल गिव अ फ्रेश अपसाइड टारगेट। think अब जो फ्रेश अपसाइड टारगेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली वी कैन गो फॉर दिस, क्योंकि आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वी हैव अ सपोर्ट सिस्टम। वीकली टाइम फ्रेम पर वी हैव अ सपोर्ट सिस्टम हियर, तो यू कैन मार्क दिस ट्रेंड लाइन, ये वाला। ठीक है, तो लास्ट वीक क्या हुआ है, लास्ट वीक में सपोर्ट इसने ले लिया है यहाँ से, वापस अपसाइड के लिए शुरू कर देगा अभी। तो देखो, आई ऑलवेज सेज, मेरे जो स्टॉक्स हैं मैं बॉटम पिक करता हूँ, और बॉटम पिक करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे उतना ज्यादा पेशेंस और उतना ज्यादा रिवॉर्ड। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर इफ यू आर ट्रेडिंग और वो थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहा है तो उसमें टेंशन नहीं लेने का। फॉर आपके सामने एग्जांपल है यस बैंक, मैंने कल ही बता दिया था यस बैंक में सपोर्ट पर आ चुका है, यहाँ पर बाइंग शुरू हो जाएगी, और देखो आज यस बैंक 6.5% अप है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कल आपके सामने मैंने सबको बताया था यस बैंक के अंदर। तो मेरे जो स्क्रिप्ट होती है उसमें पेशेंस के साथ आप बैठोगे तो पेशेंस के साथ आपको बहुत अच्छा रिस्क, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। या गॉट इट। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को आज के बाद वो हुआ इसमें, क्योंकि आज सेकंड हाफ में तो मार्केट काफी ऊपर भागा, बट स्टिल दिस थिंग डिड नॉट मूव। और मैंने इसका डेली टाइम यार फ्रेम देखो, चेक किया सारे तो उस पे स्टॉक थोड़ी होते डाउनसाइड हैं ऐसे, टारगेट्स आ रहे थे। सारे स्टॉक थोड़े नहीं, होते हैं। हमको आई पेशेंस तो देखो, आई गॉट मार्केट दैट में आप बैठे आइडिया। हो तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। देखो ये तो एक आपको मार्केट को देना पड़ेगा, पेशेंस के बिना नहीं चलेगा। राइट। हाँ, पर उसके बाद फिर मैंने जैसे डेली टाइम फ्रेम चेक किया, उसमें डाउनसाइड टारगेट्स आ रहे थे, तो आई थॉट कि ठीक है, चलो मैं एक बार आपसे ही कंफर्म करता हूँ कि व्हाट्स योर आइडिया ऑन दिस। आई एम स्टिल होल्डिंग इट। देखो, अभी आई मैंने आई इसको शो यू ऐसा नहीं कि समथिंग। पैनिक होके मैंने एग्जिट कर दिया, कि sir, पैनिक होके if एग्जिट किया। आई एम स्टिल होल्डिंग देखो, इट। आज मैं मार्केट में सुबह से ट्रेड कर रहा था, राइट, मुझे सुबह से लॉस हो रहा था, ये एक बार -40,000 तक चला गया था। आई वॉज, फ्यू स्टॉक्स में मैं शॉर्ट में था, फ्यू स्टॉक्स में मैं लॉन्ग में था। ठीक है, और ये -40,000 तक मेरा लॉस चला गया था, बट मुझे पता था कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, मार्केट यहाँ से स्टॉक्स धीरे धीरे होल्ड कर रहे हैं चीजों को, तो मैं उसमें पोजीशन बनाने लग गया था। पोजीशन बनाया जा रहा था। आप देखोगे यहाँ पर मेरी पूरी, ये देखो इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है, मैंने आज बहुत सारे ट्रेड किए, मैंने 45 फ्यूचर्स लिए, मैंने बाई सेल किए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और एक ग्रुप के अंदर मैं लाइव भी आया था, मैंने वहां पर अपने चार्ट भी शेयर किए थे। और अपने मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी बताए थे, जैसे BEL बताया मैंने, एक दो और बताए थे। तो ये मैं ट्रेड कर रहा था। अब पॉइंट ये है कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस रखा क्योंकि मैं, कन्विक्शन था मुझे। बाद में जब मार्केट में रन आया तो उसने मुझे रिवॉर्ड दिया, और अभी मैं सबको BTST लेकर आया हूँ। और अभी ग्रुप में बात चल रही थी कि देखो US मार्केट आज ग्रीन है, अब अच्छी जा रही है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर इंडिया मार्केट, मुझे तो लगता नहीं है कि फॉलो करती है US मार्केट को, बट जैसे लोग बोलते हैं कि इंडियन मार्केट फॉलो US मार्केट, तो अगर करती है तो मेरे को तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है मॉर्निंग में, क्योंकि मैं तो सारे फ्यूचर लॉन्ग करके आया हूँ, एक भी शॉर्ट नहीं है। तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। इवन दो आप लॉस में हो, लॉस में बैठे रहो, कोई इशू नहीं है, आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा। ये मेरा आज का पूरा ट्रेड आपके सामने है, राइट। तो पेशेंस रखो, ये फ्रेश टारगेट आएंगे यहाँ पर, आपको फिर अपसाइड टारगेट मिल जाएंगे। सो जो लर्निंग है वो यही है कि कोई भी आप स्टॉक देख रहे हैं, राइट, किसी भी स्टॉक के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर वीकली, ये मैंने वीकली लगाया हुआ है, ये डेली है, एंड देन 4 आवर। चलो मैं यही लगा लेता हूँ। सो दिस वन इज वीकली एंड दिस वन इज डेली। ठीक है, सो मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, सबसे पहले आप अपने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस आप क्रिएट कीजिए। तो अब मैं, चलो आपको आपको बताता हूँ ट्रेड कैसे करना है मेरे इंडिकेटर पे। अगर आपको बिग टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है तो कैसे करना है, लिसन टू इट केयरफुली। सबसे पहले आप
बिग टाइम फ्रेम पर ये सब रिमूव कर दीजिए, इंडिकेटर वगैरह। बिग टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाई है। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि ये एक मुझे कप एंड हैंडल दिख रहा है बिग टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये एक नीचे सपोर्ट बन रहा था, एक ऊपर ही रेसिस्टेंस है, और ये कप एंड हैंडल के बाद में मुझे यहाँ पर ये मेरा बाई मिल गया है। तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहा हूं, ये यहां से यहां जाएगा ही जाएगा, यहां नहीं जाएगा तो ये इस तक तो जाएगा ही जाएगा, और जब ये यहां तक भी जाएगा तो ये इसके ऊपर भी जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आप बाइक जहां पर हमें एंट्री मिले, और हमारे ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स बड़े अच्छे, मैं एक्चुअली मुझे सबसे अच्छा जो पैटर्न लगता है कप एंड हैंडल लगता है। मैं सबसे ज्यादा कप एंड हैंडल बनाता हूँ और ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। मुझे ये दोनों बहुत पसंद है, और ये मेरे जो इंडिकेटर है, आप उस पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर आप एंट्री लेते हो, जैसे मैंने कल बताया था, यू विल यू विल यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिवॉर्ड। मतलब वो आपको पेशेंस के साथ आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। मैं यहीं से यहाँ तक की बात करूँ तो कितना परसेंट है ये? मैं अगर यहाँ से यहाँ तक भी ले लेता हूँ तो 67% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। बस कंडीशन ये है कि बैठे रहो पेशेंस के साथ, आपको पता है आपका कहीं स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, डिप मिले बाई करो, डिप मिले बाई कर लो, छोटी छोटी क्वांटिटी उठाते रहो। मतलब आपने यहाँ पर कुछ बाई किया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, 5% फिर बाई कर लो क्वांटिटी, फिर ऊपर गया नीचे आया 5% क्वांटिटी फिर बाई कर लो, फिर ऊपर गया नीचे आया फिर 5% बाई कर लो। तो डिप पर बाई करते रहो, धीरे धीरे उसमें आपकी एवरेजिंग भी होती रहेगी, और देन आपको अल्टीमेटली आपको ये टारगेट मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले यू शुड मार्क ऑल द ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स ढूंढो कहाँ पर क्या बन रहा है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कंपैरिजन के लिए, इफ यू वांट टू कंपेयर, इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन वीकली टाइम फ्रेम, यू वांट टू वर्क इन डेली टाइम फ्रेम, तो आप क्या करो, वीकली टाइम फ्रेम पर ये मेरा इंडिकेटर है, इसको मार्क लगा लो, और इसमें आपने क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे इंडिकेटर से ये सेटिंग्स हैं, ये सब आप रिमूव कर दो। इन्वेस्टर्स ईएमए, इन्वेस्टर ईएमए मतलब स्लो मूविंग एवरेजेस। तो आपको बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम है, बिग टाइम फ्रेम के अंदर से आपको स्लो मूविंग एवरेजेस रिमूव कर देनी है। यू ओनली नीड टू कीप द फास्ट मूविंग एवरेजेस, जो कि रिटेलर्स की ईएमए होती हैं। सो फास्ट मूविंग एवरेजेस रखो। ठीक है, ये ट्रेंड है, ये वाला, ये ट्रेंड यहां से आता है, ये ट्रेंड यहां से आता है। अगर ट्रेंड रखना है तो ये ट्रेंड की सेटिंग्स रख लो, नहीं रखना है तो हटा दो इनको, आपकी मर्जी है। ये ट्रेंड आपको एक डायरेक्शन बता देता है कि हाँ बाइंग डायरेक्शन में चल रहा है, और ये आपका स्टॉप लॉस का भी काम करता है, काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस। उसके बाद में ये प्लॉट बैकग्राउंड है, इसको, ये इचिमोकू का होता है, इचिमोकू रख लो। क्लाउड से आपको डायरेक्शन पता लग जाती है एडवांस में, एंड दैट्स इट। सो ये मेरी सेटिंग है वीकली टाइम फ्रेम में। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम कीपिंग द फास्ट मूविंग एवरेजेस बिकॉज दिस इज अ बिगर टाइम फ्रेम। सो बिग टाइम फ्रेम में हमें रखना है फास्ट मूविंग एवरेजेस। नाउ वी कम टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, बिकॉज वी आर, देखो एक आपने पॉइंट सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। किसने सुना है, या किसी ने नहीं सुना? क्या बताओ, किसने नहीं सुना ट्रेंड इज योर फ्रेंड? सब बोलते हैं। है कोई ऐसा जिसने ना सुना हो कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड? नहीं नहीं, सभी सुने हैं। सुना है ना? सो ये तो बड़ी एक फेमस सेइंग है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट स्टार्ट करता है वो बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सबसे पहले ये सुनने को आता है कि ट्रेंड फॉलो करो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब मुझे कोई बता पाएगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड, ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं? ये ये ना, ये चीज सुनते तो सब हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन भी सब करते हैं कि ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है ना? जैसे अब आप बताओगे ट्रेंड क्या है इसमें? बुलिश ट्रेंड है, कैसे पता लगेगा बुलिश ट्रेंड है? तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड फॉलो करो। बुलिश ट्रेंड है, निफ्टी बुलिश ट्रेंड में फॉलो करो। इसको सही तरीके से ट्रेंड को पकड़ने का तरीका पता है क्या है? हाँ? अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, जस्ट लिसन टू दिस, इफ यू आर ट्रेडिंग इन डेली टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल you are trading in daily time frame, that means you are daily, you are sitting in daily। तो डे मतलब आप हो, बताए ना, दिस इज यू, दिस इज योर फादर, दिस इज योर ग्रैंडफादर, राइट? इस तरह से हमें बड़ों की बात सुननी है, राइट? सो डेली में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यू आर सिटिंग इन डेली टाइम फ्रेम,
एंड यू वांट टू ट्रेड इन डेली, सी वो तो एवरी ट्रेडर की चॉइस है, ये तो पर्सनल चॉइस है ना, कि मुझे डेली में ट्रेड करना है, आई वांट टू ट्रेड इन 5 मिनट्स, आई वांट टू ट्रेड इन मंथली टाइम फ्रेम, वो तो पर्सनल चॉइस है। आप किसी को कह नहीं सकते कि यू शुड नॉट डू ट्रेडिंग इन 1 डे टाइम फ्रेम, यू शुड ट्रेड इन वीकली टाइम फ्रेम। एंड यू कैन नॉट से एनीवन कि आप उसको 5 मिनट में ट्रेड करो, आप क्यों करते हो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड, यू ट्रेड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सो ट्रेडिंग करना किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर इज योर चॉइस। और जो आपने चॉइस आपने चुन ली, द चॉइस विच यू हैव सेलेक्टेड इज यू, दैट मीन्स डेली इज यू। आर यू गेटिंग इट? डेली इज यू। अब ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर डेली आप हो तो फ्रेंड तो कोई और होगा ना। इफ यू आर डेली, दैट मीन्स योर फ्रेंड इज समथिंग एल्स। आई मीन ये आपका आपका फ्रेंड जो होगा वो कोई और होगा, डेली तो नहीं होगा फ्रेंड आपका, ये तो आप हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? डेली इज यू। तो इफ यू आर डेली, you are sitting in daily time frame and you are trading in daily time frame, अब इफ वी से ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड तो कोई और होगा ना, वो क्या होगा? आपसे बड़ा टाइम फ्रेम, करेक्ट? तो आपको अपने फ्रेंड को अगर देखना है तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो फ्रेंड का ट्रेंड चेक करो, तो फ्रेंड का ट्रेंड यहां से चेक होगा। तो योर फ्रेंड इज वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि आपकी जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यू आर ट्रेडिंग राइट नाउ, उससे जो बड़ा टाइम फ्रेम है, दिस इज दैट इज योर फ्रेंड। दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से बड़ा वाला टाइम फ्रेम इज योर फ्रेंड, और उसका ट्रेंड क्या कह रहा है? इज योर फ्रेंड, दैट इज योर फ्रेंड। ये आपका फ्रेंड नहीं है, ये तो आप हो। यानी कि डेली में जो ट्रेंड बना हुआ है दैट इज यू, दैट इज नॉट योर फ्रेंड। योर फ्रेंड इज बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज सेज डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझा दिया है, अपने मतलब ये भी बता दिया कि आपके फादर ग्रैंडफादर की तरह कंपैरिजन कर लो उसको, ट्रेंड इज योर फ्रेंड की तरह कंपैरिजन कर लो, कैसे भी समझ लो, समझने वाली बात है। दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सो आपका जो फ्रेंड है वो बिगर टाइम फ्रेम है, और उसका जो ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है। सो वीकली टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड इज बुलिश। तो दैट मीन्स कि यहां पर जो मेरी फ्रेंडशिप है वो बुलिश के साथ होनी चाहिए, यानी कि मुझे इस डेली टाइम फ्रेम में बुलिश मोमेंटम को ढूंढना चाहिए। सो वेन एवर आई हैव अ बुलिश सिग्नल इन दिस टाइम फ्रेम, आई विल गो फॉर दैट, बिकॉज ट्रेंड इज माई फ्रेंड। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आए तो बताओ मुझे। किसी को समझ नहीं आई? नो गॉट इट त्यागी। गॉट इट, ठीक है। तो समझ गए आपको ट्रेंड इज योर फ्रेंड को कैसे कंपेयर करना है हमें। तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग बोलते हैं आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो उसको ट्रेंड चेक करो। अरे यार हमें क्या पता कि इसका ट्रेंड क्या है? अभी ये बुलिश दिख रहा है, कल को एक फॉल आ गया तो ट्रेंड तो चेंज हो गया। एग्जाम्पल बता देता हूँ। जील में यहां पर तो ट्रेंड अपसाइड था, यहाँ पर ट्रेंड साइडवेज था। और सोकर सुबह नाइट में यहाँ पर आप नाइट में सो गए होंगे आप, क्योंकि अपसाइड के बाद में साइडवेज हो रहा था एंड यू वर थिंकिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप सोकर उठे सुबह तो गैप डाउन ओपनिंग एंड देन फॉल। कहाँ गया ट्रेंड आपका? ये ट्रेंड कहाँ गया आपका? तो दैट इज व्हाई वी सेज कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो कंपैरिजन कर लो, कंपेयर विद द बिगर टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से काम कर लो, वो ज्यादा अच्छा है।
तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ओके। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पर हम लोग रखेंगे वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पर हम लोग रखेंगे डेली टाइम फ्रेम। सो सबसे पहले वी विल मार्क ऑल द ट्रेंड लाइन, वी विल मार्क ऑल द सपोर्ट रेसिस्टेंस, एंड देन विल एक्टिवेट द इंडिकेटर। एंड इंडिकेटर को मैं एक मिनट लिखता हूँ, इंडिकेटर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, आएगा। So we activate our indicator here and let's change the stock. Okay, जैसे वीकली में सीसीडी, ये कॉफी डे है, सीसीडी में बाइंग आ रखी हुई है, और ये एक रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस रेसिस्टेंस को, एक ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पर। तो डेली में क्या है, यहाँ बाई आ रही है, एंड वी हैव ऑल द मूविंग एवरेजेस अलाइंड डेली के, एंड वी हैव अ अपसाइड सिग्नल, वी हैव अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो ये स्टॉक अच्छा है बाई करने के लिए। तो अवर टारगेट विल बी 100 दिस टाइम, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर इसका वीकली का टारगेट भी 97 का है। तो कॉफी डे बाई करो, 100 रुपये पर जाएगा, बेचना उसको, मत बेचना, यहाँ पर होल्ड करो, 100 रुपीज पर का टारगेट रखो। स्टॉप लॉस क्या है मेरा? स्टॉप लॉस 60 रुपीज है। अभी हम कितने पर ट्रेड कर रहे हैं? 63 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं। तो 63 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं, 60 रुपीज, 3 रुपीज का हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते क्या? या थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहें तो क्या हम लोग 56 कुछ, मतलब 10 रुपीज का भी स्टॉप लॉस नहीं है मेरा। आई डोंट हैव इवन 10 रुपीज स्टॉप लॉस। और मेरा रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड हम बात करें 40 रुपीज का, 4:1 का रेशियो आ रहा है। इतना भी रिस्क नहीं ले सकते क्या मार्केट में हम लोग? 68% का रिवॉर्ड है, रिस्क क्या है मेरा? 10% का रिस्क है। 1:6 का रिवॉर्ड हो गया, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1:7। कहाँ मिलेगा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? गो फॉर दिस, कॉफी डे बाई करो। तो इस तरीके से यू शुड कंपेयर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और ट्रेडेड। अब जैसे बोरोसिल है ना, बोरोसिल में मुझे अगर अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह मुझे मार्क करनी है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आई विल मार्क दिस ट्रेंड लाइन, दिस वन, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ओके, तो अब क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और वीकली में मेरी बाई जनरेट होगी, तो आई विल गो फॉर अ बाई। लेकिन डेली में क्या है, पहले वीकली में बाई आने के लिए डेली में बाई आनी पड़ेगी, और डेली में बाई आने की कोशिश हो रही है। सो वी हैव अ बाई सिग्नल इन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर अगर किसी को बोरोसिल का स्टॉक अच्छा लगता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन बना सकते हो। और डेली का सिग्नल तो हमें बाई का तो सिग्नल मिल गया है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा, we already have upside targets, we can go for it, this will be our target। आज हम देख रहे हैं 22 को, आप 22 को देखना, अगर ये ब्रेकआउट हो चुका होगा तो आपको ये सेकंड थर्ड टारगेट के आसपास कहीं मिल जाएगा आपको आफ्टर 1 मंथ। Any stock you want to ask? I think this session is going to end at any moment। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपके इंडिकेटर में। हाँ जी, प्लीज बताइए ना। सर जब ग्रीन क्लाउड से प्राइस बाहर निकलता है ना, तो वो थोड़ा सा ही ऊपर जाता है, और जब ये रेड क्लाउड से बाहर निकलता है तो काफी ज्यादा अच्छी रैली आती है। ये एक चीज देखी गई, अगर आप अच्छा, इसको देख देखिए लेंगे देखिए, पुराने उसको क्लाउड भी। की जो एक, ये बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी है। क्लाउड का एक ये फीचर है, या इसकी एक आप इसको कह सकते हो, क्लाउड ऐसे ही काम करता है। तो क्लाउड जब फॉल करेगा तो ग्रीन क्लाउड से फॉल करता है मैक्सिमम केसेस में, आप देखोगे। और क्लाउड जब ऊपर जी आता है जी तो जी। रेड क्लाउड से बाहर आता है। तो क्लाउड ऐसे ही काम करते हैं। क्लाउड जब आप देखोगे, जब फॉल करेगा तो ग्रीन क्लाउड से फॉल करेगा, और क्लाउड जब बाहर आएगा, मतलब ऊपर जाएगा, बुलिश जोन में जाएगा, तो रेड क्लाउड से जाएगा। ऑलवेज यू विल सी, ये देखो। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो ये जो थिकनेस होती है, जहां पर बहुत थिकनेस कम होती है, यहाँ से ये ब्रेक करके इसको नीचे चला जाता है। आप देखोगे ना कहीं जी पर भी बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है, ये क्लाउड का एक नेचर है। क्लाउड जब भी बियरिश जोन से बुलिश जोन में जाएगा तो रेड क्लाउड से ऊपर जाएगा।
और बुलिश जोन से बेरिश जोन में जाएगा तो ग्रीन क्लाउड से ऊपर जाएगा। देखो, ये ग्रीन से नीचे गया और रेड से ऊपर गया, ग्रीन से नीचे गया, रेड से ऊपर गया। ये ऐसे ही चलता है, क्लाउड ऐसे ही चलता है। देखो, ग्रीन से नीचे आया, ग्रीन क्लाउड से, और ऊपर गया यहां से, देखो रेड क्लाउड से ऊपर जा रहा है। ये देखो, रेड क्लाउड से ऊपर गया है। ये काम ऐसे ही करता है क्लाउड। Varun, I have one small doubt. This one, yesterday we were seeing Bank Nifty futures, right? This intraday kind of positional, 4 hours, 30 minutes, and 5 minutes. A ओके, small doubt in that. Listen, before that, why don't we do this live in Telegram live? Because this Zoom is always like free version, 30 minutes, it stops, right? So Telegram will be better, right? टेलीग्राम पर ओके, मुझे आता नहीं है करना, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ना अपने ग्रुप में जस्ट आके उसको लाइव वीडियो चैट में लाइव हो जाता है वो, और लाइव प्रेजेंटेशन यू कैन डू इट। जस्ट अ मिनट, That'll be लाइक free, like दिस। you can do for see any number of hours. जैसे ये वाला है। Yeah, you can go to a इसमें, premium group and अच्छा इसमें वो चलो अपना इसमें करना है तो मुझे कहाँ से, यहाँ से लाइव आना होगा क्या? स्टार्ट वीडियो चैट, yes, स्ट्रीमिंग, yes, स्ट्रीमिंग start ग्रुप, video chat. या स्टार्ट No, you वीडियो can चैट just ना? start video chat. Yes, start video chat. स्टार्ट वीडियो चैट ग्रुप। नहीं, एक सेकंड मैं Hmm. इसको कर देता हूँ। कहाँ गया प्रीमियम, कहाँ गया हमारा? चलो ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप एंड अलर्ट देखते हैं। चलो अलर्ट एंड देन कंटिन्यू। Hmm. ओके, Wait, let me join it. ओके, so can I also share my screen here? Yes, you can do that. Start recording, share screen, okay, and then screen 2, share. Wow, nice, ठीक है। अब ये So क्या there is होगा no इसमें? restriction limit in this, time limit or something like that. You can record it. You can record directly from there itself. स्क्रीन There शेयर is तो हुआ ही option नहीं for अभी। recording. No, स्क्रीन शेयर तो हुआ ही नहीं। no, I can see this here. I can see your screens. But here, can you see that? I cannot see my screen. अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ये, हाँ। तो can you see my screen here? Yes, but I'm changing my stock script now. यथार्थ no, post let me just join your Telegram live. Then I can share you see if you. Yes, we can see your screens. ये क्या हो रहा है ऐसे? इसको मिनिमाइज कर दूं क्या? Oh, yes, please minimize it.